স্যার আগে তুমি লিংকটা দিলে সেম তো, তুমি তোমার লিঙ্কে জয়েন করো। হ্যাঁ, কি বলছে? Wait, wait. ওয়েট বলছে। The host has another meeting in progress. ওটা আছে এটা আছে দাঁড়াও, ID টা একবার বলো। মিটিং আইডি টা 830806 এটা এক মিনিট। দাঁড়াও বন্ধু। जो बोले तो জানি 830 दादा অপশন গুলো এত উল্টো পাল্টা করে দেয় না মাঝে মাঝে এরা। সেখানে ঢুকে গেছে এই পুরোনোটা দাও দাঁড়াও 1 মিনিট। হ্যাঁ, কোথায় রে ভাই? ওই তো স্যার উপরে ও 830, 830। স্যার 830685 ওইটা হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটাই তো স্যার লাস্ট হ্যাঁ তো ওটাই তো। 830685 এই খবর পাচ্ছে বুঝেছ? বুঝছো তো? চলো অ্যাটেন্ডেন্সটা মার্ক করে দিই। আচ্ছা, অয়নিকা কি এসছো? হ্যাঁ স্যার। অনলাইন কি করছো? স্যার আমার একটু একটা জায়গায় বেরোনোর কথা ছিল, ওটা মানে আজকে ভেবেছিলাম ক্লাসটা করতে পারবো না, তো ওটা ক্যান্সেল হয়ে গেছে, তাই আর যেতে পারিনি। শেখর, Yes, sir. প্রসেনজিৎ, Yes, sir. ঠিক আছে। সঙ্গম আর গৌরব এসে গেছে। রাহুল মুখার্জি, রাহুল। প্রারম্ভিক, প্রারম্ভিক আছে নাকি? চিরঞ্জিত, Yes, sir. সৌমদীপ, দীপশিকা, দীপশিকা কই? অর্ঘ, অর্ঘ নেই। মৃণালিনী নেই। সৌরদীপ, Yes, sir. ও দ্বীপটাই সৌরদীপ, দ্বীপের দ্বীপ সৌরদীপ, এরকম ব্যাপার। চলো 45 অ্যাটেন্ডেন্স দেবে আলী রাজা, আদিত্য কেজরিওয়াল, হিনা, ইয়েস স্যার। কিষান, সৌরভ প্রামাণিক, আকাশ, অরিজিৎ, Yes, sir. কানিজ, Yes, sir. শুভম ভট্টাচার্য, শুভম চ্যাটার্জি, রোহান, ওই শামিমুল, মরিয়াম, বাকিগুলো কই গেল? কি করছে? কতবার? ঠিক আছে, কি আর করা যাবে। না ভাই তুমি দেখবে এদিকে? বাদ দাও না, তোমার কি দরকার আছে? রাত্রিবেলা খেলা তো, রাত্রিবেলা দেখা যাবে। ওরা একদম বলবে না কাকে দিয়ে ওপেন করা হবে এখন, যে যাই বলবে। কথা কান দেবারই তো। ডিলিট করে দিল পাথ নট পাথ হয়ে গেল। চলো ঠিক আছে, আছে তো। এটা আর কি করতে এসএসডি দিয়ে অ্যাক্সেস করে নিতে হবে, কিছু সিএলআই ইনস্টল করা আছে।
আচ্ছা, এদিন আমরা ইউনিয়ন দেখেছিলাম তাই তো? আজকে আমরা আমাদের सबका रेडट अकाउंट है ना, तो आज हम लोग रेडट अकाउंट का इस्तेमाल पहले देखेंगे, देन वी विल मूव टू हेल्प। हेल्प में पहला चीज है कि आप कैसे अपना सिस्टम को अपडेटेड रखो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आपका सिस्टम जो है, जैसे विंडोज अपडेट रिसीव करता है ना, तो लिनक्स सिस्टम आप सोचो किसी ने 9.1 इंस्टॉल किया है, किसी ने 9.2 इंस्टॉल किया है, बट द लेटेस्ट वर्जन इज 9.4। तो एज ए सिस्टम इंजीनियर या एज ए सिस्टम एडमिन आपका पहला जॉब रोल ये है कि आप अपना सिस्टम को एक प्रॉपर अपडेट में रखो। हम लोग जैसे ऑलवेज सबको रिकमेंड करते हैं कि विंडोज 11 या विंडोज 10 जो भी कुछ भी आप यूज कर रहे हो, अगर अपडेट पेंडिंग है तो अपडेट कर लो पहले, राइट। तो डायरेक्ट सिस्टम अपडेट करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम लोग अपडेट करेंगे, देन विल मूव, ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে রেজিস্টারিং। registering the system in Red Hat portal. এটা আমরা আগে আগে করব, registering the system in Red Hat portal। तो हम लोग के पास एक Red Hat ID हम लोग पिछला दिन बनाना सीखे थे, करेक्ट है। हम लोग ने सब Red Hat अकाउंट बनाया, अपना अपना Red Hat अकाउंट है। नाउ मेरा जो ये वर्चुअल मशीन है, ये वाला सिस्टम को अगर मैं Red Hat में मैप कर दूंगा माने रजिस्टर कर दूंगा, तो क्या होगा, मेरा ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम इधर इधर जल्दी, ये क्या है, यूकुलेले क्या करता है, बजाता है तुमसे? अरे वाह, कहीं जाना है क्या आज? नहीं सर, ये रोजाना अच्छा। सो देखो, ये वाला सिस्टम को अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हो, तो रजिस्टर करने से क्या फायदा हो? रजिस्टर करने से जो पहला फायदा होगा, दैट इज आपका सिस्टम प्रॉपर अपडेट रिसीव करेगा। आपको कोई भी पैकेज डाउनलोड करना होगा, आपको कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा, तो रेड हैट हैज ए अपना ही रेड हैट का प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर माने जैसे हम लोग का गूगल प्ले स्टोर होता है ना, आप मल्टीपल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, सेम वे विंडोज स्टोर है, ऐसे रेड हैट का भी ऐसा स्टोर है। बट फॉर दिस यू नीड ए गूगल अकाउंट टू गेट ऐप स्टोर, you need a Windows account or Microsoft account to get Windows Store. Same way, you also need a Red Hat account to get applications from Red Hat. ठीक है। ये करने के लिए आपका ये 1 साल का फ्री ट्रायल मिलता है। 1 साल के लिए आप Red Hat रिलेटेड सारे के सारे अपडेट रिसीव कर सकते हो, कोई भी पैकेज डाउनलोड कर सकते हो। बट इट इज माई एक्सपीरियंस दैट आई हैव सीन दैट आफ्टर 1 year, सोचो आपका आईडी का उम्र 1 साल हो गया, देन दे गिव्स ए फ्री अपग्रेड फॉर अनदर 1 year। ये मैं देखा हूं, मेरा वाला खुद का अपडेट हुआ है, आप लोग करोगे आपका भी हो जाएगा। बट एट द एंड ऑफ द 1 year देन ये ऑप्शन आपको दिखेगा कि बाय डिफॉल्ट 1 साल के लिए ही ये अपडेट है, बट आफ्टर 1 year दे गिव ए ग्रेस टाइम कि भाई 1 साल तुम और फ्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके। तो आज हम लोग का पहला जॉब ये है कि मेरा ये सिस्टम को मैं रेड हैट रजिस्टर करूंगा, देन अपना सिस्टम को मैं अपडेट करूंगा। ये हम लोग पहले करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, এই সিস্টেমটার আমি আইপিটা দেখে নিচ্ছি, এটা বলতে থাকতে হবে হ্যাঁ না দরকার নেই, এই কমান্ডটাই চলবে না এটা। আর তো জলদি 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 आराम से।
তার মানে জিওআইটা কোনোভাবে চলছে না, ওটা আমার মিনিমাল আছে, আমি তোমাদেরকে স্ক্রিন বড় করার ব্যবস্থা সব দেখিয়ে দেবো, চাপ নেই। অ্যাক্সেস করে দেবো না, কি চিন্তা আছে, তোমরা গ্রাফিক্যালি করো। কিছু করতে হবে না, এত লোক দেখতেই তো পাবে না, এই ফন্টটাই আমি বড় করতে পারবো মিনিমাল ইনস্টলের সাথে। তার জন্য আমি পুটলি অ্যাক্সেস করে নিলে ফন্টটা নিজের মতন কাস্টমাইজ করা যাবে, কিছু না। তো অনুপম বলে আমাদের ইউজার ছিল, इज इट विजिबल टू ऑल, सबको दिख रहा है ना? अच्छा, नाउ अभी देखो मैंने अपना सिस्टम पे लॉगिन किया है अनुपम से, है ना? सो अनुपम से लॉगिन करने के लिए कौन सा একটু বাড়ি দেবো, এটা খুব ভালো ফন্ট, দেখো দেখতে ভালো লাগে, বোঝা যাচ্ছে? আটা করে দেবো, করে দিচ্ছি, 18 করে দিলাম, ঠিক আছে? এখান থেকে তুমি একটু কালার বাড়িয়ে এটাকে একটু হ্যাকিং হ্যাকিং ফিল্ম নিয়ে চলে আসো, ফোরগ্রাউন্ডটাকে না নিয়ন কালার দিয়ে দাও, ওকে ঠিকঠাক বৃষ্টি লাগছে, গোলটা সরে গেলে ভালো লাগবে, ভীষণ চোখ একদম চোখে বসে যাবে কমান্ড গুলো। देखो एक बार ठीक है ना, परिष्कार लग जाएगा। चलो एक बार देखो, ये सिस्टम मैंने रिमोट एक्सेस किया है, राइट? अभी देखो ये सिस्टम मेरा पहले काम है, ये डोमेन में माने इंटरनेट में कनेक्टेड है या नहीं, ये टेस्ट है। तो आप अपना सिस्टम का लॉगिन मिलने के बाद आप सिंपली 8.8.8 को पिंग कर सकते हो, -t देने का जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूअस ही देगा। की बोलছে नेटवर्क इज नॉट इज अनरीचेबल। तो देखते हैं क्या दिक्कत है उसको। तो आपको क्या करना है ना, ये जो सिस्टम है इसको नेट में कनेक्ट कर देना है, ये रहा नेटवर्क आपका, इसको आप नेट में कनेक्ट कर दो, ओके? और इसको अलाउ ऑल किया हुआ ही है, ओके कर लो। Okay? तो इसके बाद एक बार एक कमांड रन करना पड़ता है, दैट इज nmcli on up enps03 LAN কার্ডটা না এটা, এই যে এইটা আইপি চলেছে, রিলিজ রিনিউ যেরকম এটা LAN কার্ডটা ডিসেবল এনেবল করা। আচ্ছা কি যেটা 10.0.2.50 আমরা এটাকে মুছে দিচ্ছি, 10.0.2.50 আগে দেখি ইন্টারনেটে কানেক্ট হলো কিনা। পিং 19 কি আছে, 8.8.8 মাইনাস টি, অভ্যেস মতন উইন্ডোজের লোক তো। দেখো পিং পাচ্ছে, অফ করে দিলাম, ইন্টারনেট অ্যাক্সেস হয়ে গেছে। আচ্ছা এইবারে আমি যদি চাই এই সিস্টেমটা দিয়ে আমি রেনেটের পোর্টালে লগ ইন করব, কি কমান্ড চালাবো? কমান্ডটা খুব ইজি, কমান্ডটা হচ্ছে সাবস্ক্রিপশন হাইফেন ম্যানেজার স্পেস রেজিস্টার। কি কমান্ড? সাবস্ক্রিপশন হাইফেন ম্যানেজার স্পেস রেজিস্টার।
চালালাম। কি বলছে তোমার ইউজার নেমটা দাও। ধরো আমার একটা ইউজার নেম আছে রাজ ডট লিনাক্স সার্ভার, ঠিক আছে। পাসওয়ার্ড सिस्टम को रेड हैट के साथ रजिस्टर करने के लिए सो दैट आई कैन गेट ऑल अपडेट्स ऑल पैकेजेस फ्री ऑफ সিস্টেম বলতে কি অ্যাকাউন্ট রাখবো না এই ভিএমটার কথা বলছি। सिस्टम को रजिस्टर हाँ, जैसे तुम्हारा कोई अगर विंडोज अपडेट रिसीव करना पड़ता है तो तुम जैसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से करते हो ना कि आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है तो आप सिंपली अपडेट में जाके चेक करते हो क्या अपडेट है, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेते हो। ये भी ऑप्शन वही सेम वही, जस्ट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का अपडेट भेजता है डायरेक्ट लिनक्स का अपडेट। तो देखो मेरा सिस्टम यहाँ पे आपको मैसेज आ गया station1.example. अभी आपका सिस्टम को अपडेट करना है, कैसे अपडेट करोगे? कमांड इज वेरी सिंपल, डीएनएफ अपडेट, बस আমি সব লিখে দিচ্ছি, কোনো হুড়োহুড়ি নেই, চিন্তা না। আগে দেখ আমি সব লিখে দেবো, কোনো চাপ নেই, কেন কি বৃত্তান্ত সব কমান্ড কি লিখেছি কেন লিখেছি সব হয়ে যাবে, চিন্তা নেই। ডক্সটা খুলেছি তো ওই জন্য। দেখো ও আপডেট চেক করছে, কি লিখেছি কমান্ডটা ডিএনএফ স্পেস আপডেট, ওকে চেক করতে দাও। দেখো প্রচুর আপডেট ডাউনলোড হবে। আগে আমরা সিস্টেমটাকে আমাদের আপডেট করবো আজকে। Sir, RPMS. RPMS. আরপিএমএস না, ওটা আরপিএমস। আরপিএম মানে রেড হ্যাট প্যাকেজ ম্যানেজার। এখানে যেমন আমাদের উইন্ডোজে যেমনি ডট ইএক্সি হয়, এখানে ডট আরপিএম, আরপিএম প্যাকেজ ম্যানেজার। আচ্ছা কি জিজ্ঞেস করছে? টোটাল 18টা पैकेज इंस्टॉल হবে। देखो टोटल 18 पैकेज इंस्टॉल होगा, नया अपडेट है, और 245 पैकेट का अपग्रेड होगा, माने नया वर्जन आ गया है, उसको जस्ट ओल्ड टू न्यू वर्जन हम लोग मूव करवा देंगे। ये करने के लिए आपको क्या प्रेस करना होगा? यू प्रेस वाई। কি বলছে ইজ ইট ওকে? বলে দাও একদম, ছেড়ে দাও মেশিনটাকে 5-10 মিনিট আগে হোক আপডেট। আজ থেকে 6 মাস আগে এই কমান্ডটা এরকম ছিল না, এই রেজিস্টার করার কমান্ডটা নতুন এসেছে, এই कमांडটা দিয়েছে, পাল্টে দিয়েছে। तो একটু रेड का जो डॉक्स है ना उसको थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभी कमांड में थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, डरना नहीं है। চলো এটা তো তখন হোক আপডেট, আমরা জিনিসটা লিখে আসি কি করলাম। এটাকে তাহলে স্যার 9.48 আপডেট করে হ্যাঁ 9.4 এ আপডেট হয়ে যাবে। আচ্ছা রেজিস্টারিং দ্য সিস্টেম ইন টু রিসিভ new updates and install all packages with register our system to Red Hat. We register our system to Red Hat. Red Hat provides 1 year of free subscription for all accounts. आप Red Hat में जैसे अकाउंट बनाते हो वो आपको एक फ्री सब्सक्रिप्शन देता है, ठीक है। We need to register
our system to Red Hat portal. हम लोग को अपना सिस्टम को रजिस्टर करना पड़ेगा टू Red Hat portal, ठीक है? अच्छा, स्टेप्स कैसे करेंगे? ये करने का स्टेप्स क्या क्या है? तो स्टेप नंबर 1, चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी। ठीक, चेक इंटरनेट कनेक्टिविटी, ये आपका पहला स्टेप है। कैसे चेक करोगे? पिंग 8.8.8.8 सक्सेसफुल रिप्लाई आना चाहिए। स्टेप नंबर 2, क्रिएट ए रेड हैट अकाउंट। ठीक है, क्रिएट ए रेड हैट अकाउंट। स्टेप नंबर 3, run the following command as root। ये कमांड आपको रूट के हिसाब से रन करना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन मैनेजर स्पेस रजिस्टर। ठीक, स्टेप नंबर 4 ये हो गया आपको। नाउ इसके बाद में हम लोग क्या किए? नाउ टू अपडेट space. Now to update our system to the latest, हमको क्या कमांड रन करना होगा? We need to run DNF क्या लिखना पड़ेगा? DNF अपडेट। एक और भी कमांड, अब ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे और लिख लो, और yum अपडेट। স্যার এগুলো কি প্রত্যেকটা ভার্সনের জন্য সেম? না। কোনটা কি ভার্সন? মানে ডিএনএ আপডেট ইয়াম অনলি রেড হ্যাট প্রোডাক্ট। মানে হ্যাঁ সেটাই বলছি। হ্যাঁ, না না না, এটা সব চলবে। DNF কমান্ডটা 8 থেকে চলবে, এর আগের জন্য ইয়াম 6 বা 7 হলে ইয়াম চলবে। স্যার প্রথমে যখন যদি কোনো একটা লোকাল ইউজার থাকে তখন এই সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজারটা বলবো তখন পুরোটা চলে আসবে। বুঝলাম না, আবার বলো। এই যে ধরুন স্যার যখন আমি আমার অ্যাকাউন্টটা করে যখন টার্মিনালটা চালাই তো আমার নামটা আসে, তো যখন এই সাবস্ক্রিপশন ম্যানেজার রেজিস্টার করবো তখন কি না ওইটাই থাকবে, ওটাই থাকে। তাহলে সিস্টেমটা ম্যাপ হয়ে যাবে। হয়ে গেল? লিখে নাও আগে, বুঝতে পারছো? তোমার রেড অ্যাকাউন্ট তৈরি করে নেবে, করে নিয়ে তাহলে এই প্র্যাকটিক্যালটা আজকে করে দেখবে। সবার লেখা হলো? হ্যাঁ, হয়ে গেছে? কি না স্যার, না স্যার, তাহলে লেখো। স্যার বলছি এই পিডিএফটা কি পাঠিয়ে দেবেন? এটা তো পাঠানোই আছে বন্ধু, এটা পিডিএফ না, এটা তো গুগল ডক, সবাইকে দেওয়া আছে। তুমি পাওনি? না স্যার আমি দেখে পাইনি স্যার। চ্যাট বক্সে আবার দিয়ে দিচ্ছি, তুমি তোমার ফোনে একটু ফোনে বা সিস্টেমে একটু বুকমার্ক করে দাও, এটা ডেইলি বেসিসে আপডেট হয়ে যাবে। এটাই আমি ক্লাসে লিখি, কোনো নোটপ্যাড না, কিচ্ছু না। খালি কিছু এডিট করবে না, কেমন, আর কিছু না, জাস্ট ডোন্ট এডিট এনিথিং। আমাকে বলবে কিছু এডিট করা থাকলে আমি করে দিই। কেন, আমি চ্যাট বক্সে দিলাম। পেয়েছো? ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার। অন করে নাও। আচ্ছা, রেড কালার দিয়ে যেটা লেখা ওটা কমান্ড না? ওই তো পিং করলাম তো, বাই ডিফল্ট নেটেই তো থাকবে। নেটওয়ার্ক চ্যাপ্টার আমি আলাদা করে পড়াবো তো, আমাদের নেটওয়ার্ক চ্যাপ্টার আছে, ওখানে আমরা প্রোফাইল বানাবো, আইপি দেবো, অনেক কিছু করবো। অনেকটা সার্ভারও দেখিয়ে দেবো যে লিনাক্স সার্ভার কি করে চালাতে। আমরা ডিএনএফ সার্ভার মানে ইয়াম সার্ভার বানাবো, আমরা ডিএসসিপি সার্ভার বানাবো, অনেক কিছু আছে এতে। স্টোরেজ সার্ভার হবে, ফাইল সার্ভার বানাবো, ডিডুপ্লিকেশন সার্ভার বানাবো, কিকস্টার্ট সার্ভার বানাবো, জিরো টাচ ইনস্টলার। তোমরা যেমনি উইন্ডোজে করেছো না WDS सर्विस, WDS से क्या है, तुम्हारे तो क्लाइंट एंड में जाके आपको मैनुअली नेक्स्ट करना पड़ता है। यहाँ पे किकस्टार्ट सर्वर है,
आप क्लाइंट में कुछ नहीं करना, जस्ट वन लाइन एंटर, चुप करे वो सब छूते तक छूना नहीं पड़ेगा, ना यूजर बनाना है ना ड्राइव बनाना है, ऑटोमेटिक सब कुछ होगा, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। कर দিন। হয়েছে? না মানে 8 এও চলবে 9 এও চলবে ওল্ড ওএস এও চলবে, বাট ডিএনএফ যেটা আছে ওটা 8 9 এবং আগামী দিনগুলোতে চলবে। ঠিক আছে না, সবাই লিখেছো? আগে যাবো। স্যার সব একটুখানি টার্মিনালে গিয়ে একটু স্ক্রল আপ করবেন স্যার, হ্যাঁ? টার্মিনালে গিয়ে স্ক্রল আপ, যাবো, হ্যাঁ এখানে স্ক্রল আপ করুন স্যার, উপরে একদম উপরে একটা কমেন্ট লিখেছিলেন, ওই কমেন্টটা বুঝতে পারিনি। পরে চিন্তা নেই, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি এনএমসিএলআই কমান্ডের কথা বলছো তো, হ্যাঁ 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 স্যার। ওটা আমি লেখাবো পরে, দাঁড়াও, ওটা নিয়ে এক্ষুনি লাগছে না, ওটা আমি লেখাবো, দাঁড়াও। अच्छा এবার কি বলছে দেখো, अपडेट डाउनलोड हो गया है, नाउ वो फिंगरप्रिंट चेक करे। फिंगरप्रिंट चेक करेगा मतलब, फिंगरप्रिंट चेक करेगा ये मतलब होता है कि आपका अपडेट जो डाउनलोड हुआ है इसी के ऑथेंटिक अपडेट, मतलब ऐसा हो सकता है कि डिनेट का सर्वर में किसी ने कुछ वायरस डाल के रखा है और आपने मतलब आपने डाउनलोड कर लिया, आपके हाथ में तो है नहीं, आप डाउनलोड कर लिए, नाउ आपका सिस्टम वो नया अपडेट इंस्टॉल करने से पहले चेक करेगा कि वेदर इट इज ए ऑथेंटिक अपडेट और नॉट। उसका जो अपडेट आ रहा है जो सर्वर से, सपोज रिनेट के पास में एक सर्वर है जहां से वो अपडेट आपको भेज रहा है, जो नया अपडेट है उस अपडेट का एक फिंगरप्रिंट होता है, फिंगरप्रिंट माने एक हैश कोड होता है कि ये न्यू सॉफ्टवेयर से इसके लिए मैंने एक चाबी डिजाइन करके रखा। नाउ जो क्लाइंट डाउनलोड करेगा वो चाबी इधर पे भी जनरेट होगा और दोनों को मैच किया जाएगा। अभी थर्ड पर्सन अगर किसी ने आपका अपडेट के साथ कुछ छेड़छाड़ किया है तो दैट एंड देन इट विल नॉट मैच और आपको पता चल जाएगा यार इसमें कुछ गड़बड़ है, हम लोग नो करेंगे। तो इसीलिए हम लोग इधर वाई प्रेस करके चेक करेंगे कि वेदर इट इज ऑलराइट और नॉट। वाई प्रेस किए एंटर, की बोलছে इंपोर्टेड, एक बार ओके और करो, की इंपोर्टेड सक्सेसफुली, देखो मैंने बोला एक OS की रहेगा, अभी वो चेक मैच कर रहा है, मैच करने के बाद ही ये सब इंस्टॉल होगा, अभी जस्ट डाउनलोड हुआ है, इट इज वेरी सिक्योर। ऐसा नहीं है कि ये देखो रनिंग ट्रांजैक्शन चेक, ट्रांजैक्शन चेक सक्सीडेड রানিং টা আবার প্রত্যেকটা জিনিস চেক করবে তারপর দেবে, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कुछ सब যতগুলো ডাউনলোড হয়েছে जितना सारा डाउनलोड हुआ है वो सारा कुछ चेक करेगा, মানে 263 पैकेजेस इट इज गोइंग टू चेक। স্যার কিটা কখন স্যার মিসম্যাচ হওয়ার চান্সেস থাকে? ধরুন আমি ডাউনলোড করে নিলাম আর ধরো লেটেস্ট সার্ভারটা কেউ কিছু ভাবে কম্প্রোমাইজ হয়ে গেছে, তোর মধ্যে কম্প্রোমাইজ হয়ে যাওয়ার পরে কি হয়, যেই লোকটা যে अटैक कर रहा है जो वो आपका प्रोडक्ट के अंदर भी कुछ इंफॉर्मेशन डाल देगा कि তুমি দেখছো তুমি ভিএলসি মিডিয়া প্লেয়ার ইনস্টল করলে এটা গরু বলে ভাইরাস চলে এইবারে না স্যার কিছু নেই, আসছে আর মেশিন বন্ধ করে দিচ্ছে। অনেক 3 से 4 साल पहले हम लोग का सेंटर में ऐसे वायरस आया था, ऐसे रैंसमवेयर, प्रत्येक फाइल जो फाइल है जो आईएसओ जो डॉक्यूमेंट सब के लास्ट में डॉट ऐसे आ जा रहा है, HES और कुछ नहीं खुल रहा, तो 1200 কিছু বিটকয়েন চাইছিল, ওরা বললাম আচ্ছা এরকম দেখো না, এরকম চাই, আবার ভয় দেখানো মেসেজ করে মাঝে মাঝে, হ্যাঁ বলছে তোমার কিছু গুপ্ত ছবি আছে আমাদের কাছে, আচ্ছা আমার কাছে তো ক্যামেরাই নেই, কি দরকার আছে, আরে তো লোক টেনশন করে ফেলছে। মানে স্যার হ্যাকাররা যদি কোনো ম্যালিশিয়াস কোডটা এই আপডেটের মধ্যে দিয়ে দেয়, মানে এই তখন ওই যখন रेडहैट अपडेट का डिजाइन करे, रेडहैट जब अपडेट डिजाइन करता है ना, वो अपडेट डिजाइन करने के साथ साथ सोचो मैंने 5 नया पैकेज जनरेट किया है, तो मुझे पता है कि ये 5 पैकेज है, मैं उसके हिसाब से एक हैश कोड जनरेट करके रखूंगा। अभी थर्ड पर्सन अगर वो 5 में से कुछ भी करेगा तो 5.001 भी तो होगा, देन फॉर दैट 1 बिट ऑल्सो
the hash code will change. Then it will not match. তখনই এটা হবে, ঠিক আছে? এবার দেখো প্রপার অপারেশনটা হচ্ছে, যখন ডাউনলোড হলো কিন্তু চেক হলো, এবার আপগ্রেড হচ্ছে। হ্যাঁ, একটু টাইম লাগে। গৌরবের ঠান্ডা লাগছে না বলবে যে? গরম হচ্ছে। গরম লাগা লাগছে? হ্যাঁ আচ্ছা, একটু কমাই মাঝে রাখা। কি হয়েছে? একটু ছোট। না, ছোটটা তাড়াতাড়ি আপগ্রেড হয়ে যায়, হয়ে গেল। হয়ে গেছে। অনেক বাচ্চা প্যাকেজও আছে, 1-2 MB ফাইল, কিছু বড় প্যাকেজ থাকে। হুম, হ্যালো, মর্নিং, বলো। কেন? আচ্ছা, পাঠিয়ে দাও তাহলে। একটা নতুন ব্যাচ শুরু হয়েছে তো, 1-2 দিনের মধ্যেই শুরু হয়েছে, জাস্ট শুরু হয়েছে। কি নাম নাম্বার দাও না, আমাকে পাঠাও, আমি কথা বলতে পারবো। পাঠাও তাহলে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে ওর নামটা নাম্বারটা, আমি কথা বলে নিচ্ছি, ঠিক আছে? ঠিক আছে, আচ্ছা। যে ডিলিট করেছে সে ওরাকেল ভিএম বক্সটা রিস্ক নেয়নি, দেখেনি যে কি আছে এখানে, ভিএম ওয়ারটা উড়িয়েছে। একটা ল্যাব পুরো সেট আপ করে রাখতে হবে তোমাদের জন্য। করিনি, নেক্সট উইক থেকে সকালে সার্ভার গুলো ঘেঁটে গেছে। দুটো মেশিনে নিয়ে আরডিসি বানিয়েছিলাম, তারপর এক ছেলেকে বসেছিলাম প্র্যাকটিস করতে, সবার আগে গাধাটা স্ন্যাপশট গুলো ডিলিট করে দিয়েছে। 14 বার আমাকে ডোমেন কন্ট্রোলারটাকে আনইনস্টল করতে আর ইনস্টল করতে হচ্ছে। যখন সার্ভার পরে একটা ডিসি বানিয়ে আর স্ন্যাপশট নিয়ে রেখে দিই সব। যা করবো তো মেম্বার সার্ভারে করবো না, মেম্বার সার্ভারটা পর রোল বানাতে থাকি। লোকজন এমন একটা না আছে না, আমারই তো মেশিন, কেউ তো বসেও না তেমন। এবার একটা ছেলেকে বললাম যে তুমি এই মেশিনটা, আমার কাছে ডিসি বানানো আছে, তুমি আর একটা 2 নম্বর মেশিনটা ইনস্টল করাও আছে, তুমি এতে আরডিসিটা প্র্যাকটিস করে নাও। বাবা, আমি এইখানে বলে ওইখানে একজনের মেশিন দেখতে গেছি, ততক্ষণে সে খেলা খেলে দিচ্ছি। এটা আমি কিভাবে है सुबह वाला बैच, जो लोग कम आता है ना, लोग ऐसा दिमाग लगा लेता है, कर ले हो जाए। एक दिन मैम का उड़ा देना। हाँ, हम नहीं उड़ा पाते हैं ना, हम बोले ये तुमने क्या कर दिया, अभी मुझे 2 घंटा और बैठना पड़ेगा इसके लिए। ক্লাসে বসে ইনস্টল করা তো যাবেই না, ফার্স্ট টাইম করলাম ঠিক আছে, রোজ রোজ বসে যদি ইনস্টল করি তাহলে তো হয়ে গেল, আর শেষ করতে হবে না। চলো, অলমোস্ট ডান, এই সার্ভিস গুলো স্টার্ট হয়ে গেল। वेरिफिकेशन हो रहा है। पुट्टी सॉफ्टवेयर प्री इंस्टॉल्ड होता है ना। लिनक्स में क्यों? पुट्टी का तो तुम टर्मिनल ही एक्सेस करोगे ना, विंडोज का सीएमडी में भी से भी तुम एक्सेस कर सकते हो। पुट्टी का फीचर अभी विंडोज में भी आ गया है,
मतलब कोई भी लिनक्स बेस्ड सिस्टम तुम नॉर्मल सीएमडी से ही एक्सेस कर सकते हो। एसएसएच सपोर्ट करता है तो अभी विंडोज पहले नहीं करता था। विंडोज 10 ऑनवर्ड्स एसएसएच है विंडोज माने विंडोज में। अगर डिफरेंस नेटवर्किंग में भी ये बोल रहे हो वो मत बोलना कि एसएसएच वी कैन कॉन्फ़िगर ओनली ऑन लिनक्स बट वी कैन नॉट कॉन्फ़िगर ऑन विंडोज, ऐसा नहीं है। विंडोज 10 ऑनवर्ड्स एसएसएच इज इजीली सपोर्टेड इन विंडोज। आपको ये प्री एनेबल्ड है, आपको अलग से एनेबल भी करना नहीं होगा। टेल ने एनेबल करना पड़ता है, जो उसका घर का प्रोडक्ट था। जो बाहर से आया वो ऑटो एनेबल्ड ही आया है, ठीक है। अच्छा, तो देखो मेरा सिस्टम अपडेट हो गया है। नाउ इफ आई रन दिस कमांड सेम, इट इज cat etc red hat release, देखो इट इज नाउ 9.4। कैन यू सी इट इज नाउ 9.4। तो मेरा सिस्टम अपडेट हो गया। अच्छा, ये एक चीज हम लोग ने देखा সেই ডলার সাইনটা যারা এসেছে হ্যাঁ, যেহেতু আমি রুট দিয়ে লগ ইন করেছি তাই। নর্মাল ইউজার হলে ডলার থাকতো, যেহেতু রুট তাই। আর ये जो ऑपरेशन हुआ, ये ऑपरेशन इज ए रूट ऑपरेशन, माने एडमिनिस्ट्रेटर ही ऐसा कर पाएगा, दूसरा कोई नहीं। दैट्स व्हाई हम लोग रूट से लॉगिन करेंगे। कभी कभी रूट से लॉगिन करना है जब नॉर्मल यूजर नहीं कर पा रहा है, देन ओनली, एल्स नहीं करना है। अच्छा, ये तो हम लोग ने देखा। नेक्स्ट एक बार चलो अपना पोर्टल ओपन करते हैं। স্যার বলছিলাম যদি আমি লিনাক্সটা থার্ড পার্টি কোনো মানে সাইট থেকেও নামাই তাও আপডেট হবে তো? জিনিসটা তো ফ্রি, তুমি থার্ড পার্টি সাইট থেকে নামাবে কেন? বাট 9 টু মানে রেড হ্যাট 9 আছে সেটা 9.4 এ কি করে অ্যাক্সেস করবে? বুঝলাম না, আবার বলো। মানে 9 থেকে 9.4 এ যেতে এক কমান্ড ডিএনএফ আপডেট, सेम कमांड 9 तक 9.1 तक 2 तक 3 तक सेम कमांड डीएनएफ अपडेट, बस दैट्स इट। कमांड तो जेनुइनली है না, 8 থাকলে 9 হবে না, নেবে না। নিচে ওর 8 এর হাইয়েস্ট অবধি যাবে, 9 হলে 9 এর হাইয়েস্ট অবধি যাবে। এরকম 8 থাকলে ইয়ামটা তাই তো বললাম না, তুমি 9 এও ইয়াম করতে পারো, আমার তো 8 আছে 8.1 আছে। হবে তো, ইয়ামও চলবে ডিএনএফ ও চলবে। এইটার উপর যে হ্যাঁ। ডিএনএ স্যার আমার মেশিনে আমার লিনাক্স 8 আছে, ইকুয়াল সামথিং আছে। আমি 9 এ যদি আপগ্রেড করতে যাই তাহলে ডিলিট এন্ড ইনস্টল। ডাইরেক্ট হয় না। अच्छा, अभी देखो ये जो आपका ये मेरा सपोज रेड हैट अकाउंट है, ओके। नाउ इसके अंदर में मैं अगर सब्सक्रिप्शन में जाऊंगा, if I'm going to सब्सक्रिप्शन, গেলাম তো। আচ্ছা, এখান থেকে দেখো সাবস্ক্রিপশন से আমি গেলাম। Now can you see I have 2 by default subscriptions, ये दोनों सब्सक्रिप्शन से ही आपको अपडेट मिल रहा है। ये जो अभी आपने अपडेट डाउनलोड किया, देखो 27 को मैंने ये वाला आईडी मेरा क्रिएट किया है आप लोग के लिए, एंड देखो इसका एंड डेट एग्जैक्टली 1 ईयर है और इसका स्टेटस इज नाउ एक्टिव, ठीक था। अच्छा, रेडी टू रिन्यू ये वाला ऑप्शन है, और आपको जो वो अपग्रेड करना होगा दैट इज रिसेंटली एक्सपायर्ड में जाएगा, এখন আর হবে না। ये फ्यूचर डेटेड और ऑल में जाओगे तो आपका ये दिखेगा, क्लियर। এবারে আমরা যাচ্ছি হচ্ছে ये ओवरव्यू टैबे। तो यहाँ पे आप अपना सब्सक्रिप्शन एंड डिटेल्स वगैरह पूरा देख सकते हो, ठीक है। এই বার দেখো আমরা नेक्स्ट साइट जो हम लोग का है दैट इज डेवलपर साइट, इसमें भी एक बार चलते हैं। লগ ইন তো করাই আছে, এখান থেকে তুমি মাল্টিপল টেকনোলজিস দেখতে পারো, প্রোডাক্টস দেখতে পারো, যা যা প্রোডাক্ট ওদের আছে। এবারে এখান থেকে यहाँ सब सब्सक्रिप्शन किसी को एलोकेट भी कर सकते हो, ये टोकन है, यहाँ से एपीआई टोकन दे सकते हो किसी को। एक ऑप्शन था जो क्लाउड में
उसका जितना सारा सिस्टम को मैंने अब कनेक्ट किया है ना वो दिखा था, बट ये पोर्टलটা হিউজলি চেঞ্জ করে দিয়েছে। सर वो टोकन से क्या होता है? टोकन से तुम एक टोकन का एक वैलिडिटी होता है, उस टोकन का वैलिडिटी तक ही तुम एक सब्सक्रिप्शन को यूज कर सकते हो। सपोज तुम्हारा एक कंपनी है, तुमने एक प्रोजेक्ट के लिए किसी को 3 महीने का टोकन दे रहे हो, 3 महीना तक वो तुम्हारा सब्सक्रिप्शन को यूज कर पाएगा। जैसे ही वो टोकन एक्सपायर हो जाएगा वो सर्विस भी एक्सपायर हो जाएगा। टोटल जो जितना टाइम है उसको अगर तुम छोटा पार्ट में किसी को एलोकेट करना चाहते हो देन टोकन चाहिए। मैनेज्ड टाइम बेस्ड एक्सेस जिसको बोलते हैं। স্যার সাবস্ক্রিপশনটা যখন রিনিউ করবো ওটাও তো ফ্রিলি? হ্যাঁ হ্যাঁ ফ্রিলি। আমি বলছি না বারবার যে ওরা প্রোডাক্টের টাকা নেবে না, অনলি সাপোর্টের টাকা নেবে। ঠিক আছে তো? আচ্ছা, এবার আমরা একটু এখানটা আসছি। এখানে রোজ কিছু না কিছু পাল্টে যাচ্ছে। এডব্লিউএস এর মতন একই বালনার কি যে কি করছে এরা, মানে এই পোর্টালটা এরকম দেখতে ছিল না। এখানটা এই सब्सक्रिप्शने गेले এখানে कौन कौन सिस्टम कौन सा सिस्टम तुमने कनेक्ट किया है उसका भी लिस्ट आता था। ओके স্যার ওই অ্যালোকেশনটা কি? দেখো না না এটা তো ওই অ্যালোকেট করবার জন্য, এটা এখানে হবে না। এই যে ক্রিয়েট নিউ অ্যালোকেশন বলে দেখো, এটা সেটা না। দেখো ক্লাউড অ্যাক্সেস সাবস্ক্রিপশনে যাও, ওভারভিউ কাজ করি চলো। কিছু দেখাচ্ছে না, আবার কিছু ডকুমেন্টেশন দেখতে হবে, খুঁজতে হবে। আচ্ছা, সো এইটা আমাদের হলো। এরপর আমরা ফিরে আসছি আমাদের নর্মাল যে হেল্প কমান্ড গুলো আমরা শিখছিলাম ওতে। সো চলো ডকুমেন্টেশনে ফিরে যাই, আর আমরা এইটাকে এর নেটওয়ার্কটাকে আমরা আবার হোস্ট অনলি অ্যাডাপ্টারে কানেক্ট করে নিই, তাহলে আমরা পূর্তি দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারবো। এই কমান্ডটা বলছো তো? nmcli on up enp0s3 192.168.56.101 এ ছিল অনুপম। অনুপম পাসওয়ার্ড কি ছিল অনুপম তোমার? রাইট, चलो अनुपम दी हमरा लॉगिन कर निয়েছি। अनुपम से हम लोग ने लॉगिन कर लिया है एंड वी आर थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं इनकम साइज। ঠিক আছে অনুপম, কোনো অসুবিধা অনুপম? পরিষ্কার তো অনুপম? ওকে না, এবার চলো আমাদের এতে কোথায় গেল डॉक्यूमेंट। ये तक तो हम लोग ने कर लिया। नाउ वी आर कमिंग बैक टू हेल्प इन लिनक्स। तो ऑनलाइन हेल्प हम लोग ने देख लिया है। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद द ऑफलाइन। अच्छा, तो फर्स्ट कमांड किया है, फर्स्ट चलाई देखो तब पहले चलाते हैं कमांड, देखो क्या है। कमांड है हु। क्या कमांड हमने रन किया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, वाह देखो क्या बोल रहा है, रूट अनुपम अनुपम है ना। तो हु कमांड आपको बताता है आपका अभी करेंटली कौन कौन सा यूजर लॉगिन किया हुआ है। रिमेंबर गाइस, लिनक्स इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एट ए टाइम मल्टीपल लोग मल्टीपल जगह से इसको एक्सेस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। विंडोज क्लाइंट ओएस इज ए सिंगल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल ओएस माने सॉरी सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एट ए टाइम एक ही यूजर उसको यूज कर सकता है। बट अगर आप मल्टीपल यूजर का एक्सेस चाहते हो
either you need to move to Windows Server and or you can move to Linux. Linux Windows क्लाइंट में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, विंडोज सर्वर में आपको ये ऑप्शन अच्छे से मिलता है। एंड लिनक्स का सारा ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर हो क्लाइंट हो, उसको आप मल्टीपल जगह से एट ए टाइम रिमोट एक्सेस भी कर सकते हो, कंसोल एक्सेस भी कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे एक्सेस। Who command is going to tell me which users are using our system right now? कौन कौन हमारा सिस्टम को यूज कर रहा है? तो यहाँ पे देखो हम लोग पुट्टी के थ्रू एक्सेस किए हैं, उसमें कौन सा यूजर यूज हो रहा है? अनुपम। एंड रूट कहाँ पे यूज हो रहा है? TTY1, TTY माने टेलीटाइप, ठीक है। और ये जो फिजिक माने इसका जो ओरिजिनल कंसोल है उसके अंदर रूट लॉगिन किया हुआ है, कैन यू सी? तो इसका काउंट आ रहा है रूट, और ये पुट्टी वाले के लिए काउंट आ रहा है ये अनुपम। तो ये दो दिखा रहा है बिकॉज यहाँ पे एक है PTS0, एक है 1। मैंने एक बार पहले किया था, उसको डिस्कनेक्ट नहीं किया है, इसलिए दोनों दिखाता है, ठीक है। अच्छा, तो हु कमांड आपको क्या बताएगा? ऑल लॉग्ड इन यूजर्स। हु कमांड क्या बताएगा? ऑल लॉग्ड इन यूजर्स। तो हु का कमांड आप कैसे चलाओगे? कमांड आप ऐसे चलाओगे। মানে যতবার পুট্টিতে লগ ইন করবো ততবার এখানে দেখাবে 0 1 2 করে। তো ঠিক আছে, এই কমান্ডটা এইভাবে চলবে। लेफ्ट साइड आगे থেকে ही আসবে, और राइट साइड में खाली हु आपको लिखना होगा। हु वाला पार्ट खाली आपको लिखना है, लेफ्ट साइड वाला ऑटोमेटिक आएगा, ঠিক আছে। কোনো অসুবিধা? क्लियर है? नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट इज हु एम आई। सुशांत ঘুমাচ্ছ? দাঁড়াও, এই ওএস একটু স্টার্ট হতে টাইম লাগে। হু এম আই তে যাই। হু এম আই মানে আমি কে। এই কমান্ডটা উইন্ডোজেও চলে, এই কমান্ডটা লিনাক্সেও চলে। हु एम आई माने जो टर्मिनल में आप अभी बैठे हो, माने जो विंडो के सामने आप बैठे हो उसमें कौन सा यूजर काम कर रहा है, ये आपको दिखाएगा। हो सकता है एक लिनक्स सिस्टम ये वाला है, इसके पास में काफी सारा यूजर मैंने बना दिया है, और सब लोग SSH यूज करके अपना अपना सिस्टम से मेरा सिस्टम को कनेक्ट किया है। हु कमांड अगर मैं रन करता हूं तो मेरा सिस्टम को जो जो सिस्टम से एक्सेस किया गया है वो सबका लिस्ट आएगा। बात मेरा समझ रहे हो? हाँ या ना बोलो? कोई शर्माना नहीं है, शर्माओगे तो समझ में नहीं आएगा। बता दो अगर नहीं क्लियर है तो। नहीं क्लियर है? यस सर। अच्छा अच्छा है, सच में है। अच्छा है। सोचो मेरे पास एक लिनक्स सिस्टम है, उसमें मैंने 20 यूजर्स बनाया, और 20 डिफरेंट सिस्टम से मैंने वो वाला सिस्टम किया। कौन सा प्रोटोकॉल यूज करके एक्सेस करेंगे? SSH इज द डिफॉल्ट। जैसे विंडोज में RDP होता है, लिनक्स में SSH होता है। अच्छा, तो हम लोग ने एक्सेस कर लिया। अभी अगर हम लोग में से कोई भी अपना सिस्टम पे बैठ के हु कमांड रन करता है तो बाकी सबको दिखाई देगा, माने बाकी सबका एक्सेस उधर पे दिखेगा। 20 यूजर्स का अलग अलग IP एड्रेस भी दिखेगा, और 20 यूजर्स के लिए 20 अलग अलग स्क्रीन भी दिखेगा। बट अगर मैं हु एम आई कमांड चलाता हूं तो जो सिस्टम पे बैठ के आप हु एम आई कमांड रन कर रहे हो, उसी सिस्टम पे उसी टर्मिनल में जो यूजर काम कर रहा है खाली उसी का नाम दिखाएगा, ठीक। और किसी का भी नाम करके देखते हैं। चलिए, कमांड क्या बोला हम लोग ने? हु एम आई एक साथ लिखना है। कोई लोअर, सब कुछ लोअर केस में कमांड है, कोई अपर केस नहीं है, कोई स्पेस बार नहीं है। देखो व्हाट इज विजिबल? अनुपम। अच्छा, अभी एक बार हम लोग का ये जो ओरिजिनल वाला विंडो है, मतलब जो ओरिजिनल कमांड लाइन वाला विंडो है, इसमें हम लोग ये कमांड रन करके देखते हैं।
अब मुझे बताओ क्या आउटपुट आना चाहिए? रूट, बिकॉज ये वाला टर्मिनल में कौन लॉगिन किया है? रूट। मारो एंटर, देखो रूट। अनुपम के बारे में इधर पे दिखाया, लेकिन अगर मैं हु कमांड इधर पे रन करूंगा तो मुझे अनुपम दिखेगा। ये सब लॉगिन किए। नोटिफिकेशन हाँ, और कौन सा सिस्टम से लॉगिन किया है वो भी दिखाएगा। देखो 56.1 मेरा फिजिकल सिस्टम का आईपी एड्रेस 56.1 ही है, तो उसका नाम दिखाएगा। जैसे टेलनेट दिखाता है ना, सो आईपी बाइंडिंग्स कमांड में या सो यूजर्स कमांड चला ना सिस्को राउटर में, है ना? हम लोग सिस्को राउटर में सो यूजर्स कमांड रन करी तो बोलेगा तो वेरी गुड। टेलनेट अगर आपने कॉन्फ़िगर किया है राउटर में, तो आप अगर राउटर में बैठ के चेक करना चाहते हो कि मेरे को कौन कौन सा सिस्टम से एक्सेस किया जा रहा है, which command will you run? বলো সৌমিতা, কমান্ড ভুলে গেলে হবে? একটা রাউটারে বসে তুমি কিভাবে দেখবে যে কত লোক তোমার টেলনেট অ্যাক্সেস করেছে? आपने अपना राउटर है सिस्को का, सोचो ऐसे सिनेरियो कि सोचो आपके पास में एक सिस्को राउटर है, उसमें आपने टेलनेट सर्विस एनेबल कर दिया है एंड आपका राउटर में से 10 यूजर्स है, ठीक? तो अभी सपोज कोई कोई एक्सेस किया गया है, कोई कोई यूजर ऐसे ही रखा हुआ है, कोई एक्सेस नहीं कर रहा। अगर आपको मैं अभी पूछूंगा कि अच्छा मुझे बताओ तो कौन कौन सा यूजर ने अभी लॉगिन किया है और कौन कौन सा सिस्टम से लॉगिन किया है, क्या आप इंडिविजुअली वो 500% जो आपका फ्लोर में है उसको जाके छुप छुप के उसका देखोगे, "ए, क्या मिनिमाइज किया निकालो", ऐसा करोगे? पॉसिबल है क्या? फिजिबल है क्या? नहीं है। तो हमारे पास राउटर में बैठ के देखने का कमांड होना चाहिए कि कौन एक्सेस हो रहा है। क्या कमांड होता है? सो यूजर्स। सो यूजर्स कमांड से ही आपको दिखा देगा कौन सा यूजर लॉगिन किया है एंड कौन सा सिस्टम पे बैठ के लॉगिन किया है। जो सोचो कि मैंने एक्सेस किया राउटर को, तो मैंने जो सिस्टम पे बैठा हूं वो सिस्टम का आईपी एड्रेस भी दिखेगा और मैं जो यूजर नेम से एक्सेस किया हूं वो भी दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा? राउटर का कंसोल में दिखेगा। हमको इंडिविजुअल पर्सन को विजिट करने का जरूरत ही नहीं। सेम वे अगर आप वो कमांड का यूज करते हो तो यही एकदम सेम टू सेम चीज है। तो आपको ये देखने का जरूरत नहीं है कि कौन कौन सा सिस्टम पे बैठा है। सपोज लिनक्स वाला सिस्टम को सुशांतो वहां से कनेक्ट किया और मिनिमाइज करके रखा हुआ है, हम उसको पूछ रहे हैं सुशांतो कनेक्ट कर किए हो क्या? कोई सर ना, तो कैसे पता चले? I will not ask Susanto. I know IP address of Susanto. I will just run the command who and I will understand. Oh, minimize करे Susanto. Yes. Because कंपनी में नेटवर्क आर्किटेक्चर है, कौन सा सिस्टम पे क्या आईपी एड्रेस है इसको भी मुझे पता है। हम आराम से देख लेंगे किसके पास क्या आईपी एड्रेस है और कौन ने एक्सेस किया है। जस्ट ये कमांड का यूजर समझो। देखने में ये एक छोटा सा कमांड है हु, बट रियल टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। इसको आप यूज करके आपका चेयर से उठना बंद हो जाएगा। Sir, इंजीनियर्स आर वेरी लेजी, यू नो। नो सर। यस, डेफिनेटली। अगर तुम लेजी नहीं हो तुम इंजीनियर नहीं हो। सर एक रात में हिसाब करके पास हो जाते हैं। और यही लोग चेयर से ना उठने के लिए चक्कर लगाता है। इन्वेंटेड बाय इंजीनियर्स, थिंक अबाउट इट। तुम कैलकुलेट नहीं करोगे इसलिए कंप्यूटर बनाए हो। सोचो, यू आर इंजीनियर। सोचो, फैन तो पहले हाथ से घुमाते थे, अभी जो स्विच ऑन होता है कोई ना इंजीनियर तो बनाया होगा। तो कोरिया आदमी ना ये सब करता है। सर ये शो यूजर का सर कौन मॉडल बिजनेस मॉडल, सो कमांड तो बिजनेस मॉडल মানে ওই एस वाला था, 2 नंबर मिल जाए। अच्छा স্যার বলুন স্যার। বলছি স্যার যে হু এম আই যেটা করলেন ওই রুটের জায়গাটা আরেকবার বলবেন। হ্যাঁ, হু এম আই মানে আমি কে, হুম মানে আমি যেই টার্মিনালটায় আছি ওই টার্মিনালটায় বসে কে লগ ইন করছে। মানে ধরো আমি এই পুটটির টার্মিনালটায় আছি, সে এই টার্মিনালটায় কোন ইউজারটা কাজ করছে, আমি যদি সেটা অনলি সেটাই দেখতে চাই তাহলে হু এম আই কাও। আর যদি কে কোথায় আছে, कौन कहां पे है ये मुझे देखना है, देन द कमांड इज हु। তো স্যার বলছি যেহেতু ওইটাতে রুট দিয়ে লগ ইন করেছিলেন তাই জন্য হু এম আই তে রুট আসলো, তাই তো? হ্যাঁ ঠিক তাই। আর এখানে অনুপম দিয়ে লগ ইন করেছি তাই হু এম আই তো অনুপম। পরিষ্কার যাবো আগে? স্যার রুট, হ্যাঁ স্যার রুট ইউজারটার কোনো আইপি নেই? আইপি ইউজারের কি আইপি হয় ভেবে দেখো দেখি কথাটা।
না ইউজারের আইপি হয় না স্যার, মেশিনের আইপি হয়। আইপি হয়তো ওই না এটা যেমন এই অনুপমের, হ্যাঁ বলো বলো, তুমি বলে নাও। যেমন অনুপমের আইপি দিয়েছে, বাট তাহলে রুট ইউজারটা, হ্যাঁ হ্যাঁ চলো তুমি আমাকে একটা জিনিস বলো, নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস আর কনসোল অ্যাক্সেসের মধ্যে কি ডিফারেন্স হয়, এইটা আগে বলো। ডিফারেন্স বিটুইন নেটওয়ার্ক অ্যাক্সেস এন্ড কনসোল অ্যাক্সেস। কনসোল অ্যাক্সেস মানে কি হয়, যেই জিনিসটাকে আমি অ্যাক্সেস করব ওটাতে ডাইরেক্ট কোনো কেবল কানেক্ট করে অ্যাক্সেস করব, জাস্ট লাইক ইউ অ্যাক্সেস এ রাউটার ইউজিং দ্য কনসোল কেবল। তো নাও ইজ ইট আইপি অ্যাড্রেস ভিজিবল? নো, বিকজ আই এম না। নট ইউজিং নেটওয়ার্কিং। কনসোল কেবল কোন সা নেটওয়ার্কিং এ কাজে লাগে? লাগে না তো, ও তো ডাইরেক্ট বুঝেছি অ্যাক্সেস স্যার, করবার জন্য কাজে লাগে। ধরো তোমার বুঝেছি কাছে একটা কম্পিউটার আছে, ওই কম্পিউটারটাকে আমি একটা মনিটরের সাথে কানেক্ট করে দিলাম ভিজিএ কেবল দিয়ে বা এইচডিএমআই কেবল হুম। দিয়ে, তাহলে কি আইপি অ্যাড্রেস দেখাবে মনিটরটা? দেখাবে না না তো। না না না। যদি তুমি ওকে কোনো রিমোট অ্যাক্সেস করো ইউজিং এনি নেটওয়ার্ক বেস সার্ভিস লাইক আরডিপি অর এসএসএইচ, দেন অনলি আইপি অ্যাড্রেস দেখাবে। অনুপম ইউজারটা দিয়ে আমি এসএসএইচ অ্যাক্সেস করেছি, তার জন্য ওর পাশে আইপি দেখাচ্ছে, বাট রুটটা আমি কনসোল অ্যাক্সেস করেছি, যেখানে সিস্টেমটা আছে ওর ওটাই ডিসপ্লে। এই যে কমান্ড লাইন উইন্ডোটা, এটাই ওর ডিসপ্লে, তার জন্যই এখানে আইপিটা দেখাচ্ছে না। ক্লিয়ার? ওকে বুঝতে পারলে? হ্যাঁ না? স্যার, লজ্জা পাবে হ্যাঁ নাকি? স্যার, হ্যাঁ না আবার স্যার, বোঝনি? হ্যাঁ স্যার বুঝেছি। কি আরো একটু আলো ফেললে ভালো হয়? না না স্যার বুঝে গেছি। বুঝে গেছো? আচ্ছা, ডু ইউ ওয়ান্ট মি টু অ্যাপ্লাই মোর লাইটস অন ইট? Yes, sir. এর মানে এটা কর। বলছি আরেকবার বলুন। হ্যাঁ, আচ্ছা মানুষ কখন বেশি বোঝে? যখন ছবি আঁকা হয়, ঠিক তো? চলো ছবি আঁকি। তোমার কি আচ্ছা শান্ত হও, শান্ত হও, এদিকে দেখো, ছেড়ে দাও। ধরো এই মেশিনটা আমার একটা লিনাক্স সার্ভার আছে, ঠিক আছে? ये सिस्टम है, ये एक लिनक्स okay, this system is my लिनक्स सर्वर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ये लिनक्स सर्वर होने से किसी को आपत्ति है? नहीं है। अच्छा, तो सोचो ये सिस्टम नेटवर्क में कनेक्टेड है। पहले ये पता है ना आप लोग को कि सर्वर रैक में रहता है, उसके साथ में कोई मॉनिटर वगैरह नहीं रहता, जो भी कुछ भी एक्सेस होगा कंसोल बेस्ड एक्सेस नहीं होगा, रिमोट एक्सेस के थ्रू होगा। अच्छा, और सोचो ये सपोज আমার এই কোশ্চেনটা কে করলে গো? কি নাম তোমার? সৌভিক। আচ্ছা ধরো সৌভিক, এটা সৌভিক নিজের ল্যাপটপ আছে, দিস ইজ সৌভিকস ল্যাপটপ। কোনো অসুবিধে? পরিষ্কার তো? এবার ভালো করে দেখবে, আমার কাছে এই সিস্টেমটাকে ধরো আমি অ্যাক্সেস করতে চাইছি, এর আইপি অ্যাড্রেস 192.168.56.101, আর সৌভিকের যে ল্যাপটপটা আছে এই ল্যাপটপটার আইপি অ্যাড্রেস 192.168.56.1, ঠিক? কোনো অসুবিধা আছে? अच्छा ये जब एक सर्वर है तब इसका एक डिस्प्ले पोर्ट भी होना चाहिए, हाँ ना? इधर HDMI और VGA समथिंग लाइक दैट। वो কিছু বলে না, ও খালি দেখে। তো ধরো আমরা এখানে একটা মনিটর কিনলাম, ঠিক আছে? এই মনিটরটার সাথে আমি এই সিস্টেমটাকে কানেক্ট করলাম, আমাকে বলো হ্যাভ আই ইউজড নেটওয়ার্কিং? নো। তাহলে কি কেবল দিয়ে কানেক্ট করবে? যদি राउटर स्विच है, কনসোল। अगर ये राउटर स्विच है तो हम लोग यूज करेंगे कंसोल केबल। अगर ये नॉर्मल कोई सर्वर है हम लोग यूज करेंगे आइदर VGA केबल और HDMI केबल, है ना? और कुछ और एक KVM स्विच आता है, उसको यूज करके भी आप एक्सेस कर सकते हो। KVM स्विच देखे हो ना? अच्छा, KVM स्विच एक छोटा सा स्विच जैसा चीज है
जिसके अंदर में काफी सारा डिफरेंट पोर्ट्स अवेलेबल होता है। बीजीए पोर्ट भी है, HDMI पोर्ट भी है, नेटवर्क पोर्ट भी है, कीबोर्ड माउस सब कुछ है। एक मल्टी डिवाइस जिसके अंदर में सारा कुछ होता है। इसको केवीएम स्विच बोलते हैं। ये रैक में बीच में रहता है। कोई भी सर्वर राउटर को एक्सेस करने के लिए वो वाला स्विच का यूज किया মানে পোর্টের কাজ করে। হ্যাঁ, অনেক রকমের ইন্টারফেস अवेलेबल আছে ওর। अच्छा, এবার ये क्या है मेरा? ये मेरा एक मॉनिटर है। अगर ये एक मॉनिटर है तो ये कैसा केबल है? लेटेस्ट चलते हैं HDMI केबल है ये, ठीक। तो जैसे ही आप HDMI केबल से इस सिस्टम को कनेक्ट करोगे, ये लिनक्स सर्वर का डिस्प्ले इस मॉनिटर में आएगा, है ना? क्या आपका नेटवर्क इसमें इन्वॉल्व हुआ? नहीं। तो क्या इसके बगल में IP एड्रेस दिखेगा? अगर मैं यहाँ पे बैठ के हु कमांड चलाता हूं तो क्या मुझे ये मॉनिटर वाला सिस्टम का IP एड्रेस दिखाएगा? नहीं दिखाएगा। सोचो आपने इधर में रूट से लॉगिन किया है तो आपको खाली रूट ही दिखेगा। लेकिन सौभिक अपना लैपटॉप यूज करके जब इसको SSH एक्सेस करेगा, देन सपोज सौभिक का ही अपना यूजर नेम है सौभिक, तो इसके बगल में क्या दिखाएगा? 192.168.56.1। क्यों? बिकॉज ये जो एक्सेस है ये कोई मॉनिटर का एक्सेस नहीं है, इट इज ए नेटवर्क बेस्ड एक्सेस। ये कैसा एक्सेस है? जैसे नेटवर्क बेस्ड एक्सेस। कौन सा प्रोटोकॉल आपने यूज किया? यू हैव यूज SSH, जिसमें कंप्लीटली नेटवर्किंग इन्वॉल्व है। दैट्स व्हाई IP एड्रेस दिखाएगा एंड दैट्स व्हाई IP एड्रेस नहीं दिखाएगा। इज इट क्लियर? एकदम পরিষ্কার। आगे जाओ। বাকিরা ক্লিয়ার তো? যারা অনলাইন আছো, হ্যালো। यस सर। হ্যাঁ স্যার। पेज ठीक আছে, বোঝা যাচ্ছে সবার? सब लोग को क्लियर हो रहा है? पेज ठीक है मेरा? धीरे जाए, जल्दी जाए। ঠিক আছে স্যার। कॉमन प्रॉम्प्ट একবার খুলবো। কোন কমন প্রম্পট? স্যার PTS টাইপের PTS মানে কারেন্ট বা সুডো টার্মিনাল, যেটার মধ্যে তুমি সাইজ ইনক্রিজ ডিক্রিজ করতে পারবে সেটাকে PTS বা সুডো টার্মিনাল বলে। ठीक है। सुडो टर्मिनल माने जिसके अंदर ग्राफिकल एक्सेस है, ठीक है। और TTY माने जिसके अंदर कोई ग्राफिकल एक्सेस नहीं है। उसको तुम चाहोगे भी तो कीबोर्ड छोड़ के और सेकंड कोई डिवाइस यूज नहीं कर सकते हो, ना स्क्रॉल कर सकते हो, ना फाइल साइज या फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। दैट इज ए नॉर्मल कंसोल बेस्ड एक्सेस। उसको हम लोग TTY बोलेंगे। और जिसमें हम लोग साइज चेंज कर सकते हैं, जिसमें हम लोग फॉन्ट साइज बदल सकते हैं, कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिस्प्ले को मैनेज कर सकते हैं, उसको हम लोग सुडो टर्मिनल या PTS बोलेंगे। ठीक है, चले आगे। তাহলে হু এম আইটা ক্লিয়ার? হু এম আইটাই আমরা কি লিখলাম? shows only current terminal, shows only current terminal user। ঠিক তো? এটা আমরা কপি করে নিই তাহলে ওখানে। अच्छा, যখন এই পুটটি উইন্ডোজে কপি करना है, সিলেক্ট এন্টার। ঠিক আছে, সিলেক্ট করে এন্টার, রাইট ক্লিক করলে কিন্তু পেস্ট হয়ে যাবে। এই पुट्टी टर्मिनल में राइट क्लिक मतलब पेस्ट। अगर आपको कुछ भी टेक्स्ट यहां से कॉपी करना है, यू सिलेक्ट एंड प्रेस एंटर। सिलेक्ट করে এন্টার প্রেস করবে তাহলে কপি হয়ে যাবে। না, ঠিক আছে, কমান্ড লিখে দিলাম এখানে, আমি লাল করে দিই, বুঝে গেল? আগে যাব। এবার কি কমান্ড আছে? হুইচ। ঠিক আছে, চলো আমরা হুইচ কমান্ড চালাই। देखो, यूजर ऐड इज ए कमांड। ठीक, यूजर ऐड क्या है? एक कमांड। तो आपके सिस्टम पे सिस्टम का लाइब्रेरी होता है। लाइब्रेरी मतलब जिसके अंदर सिस्टम सारा कमांड को स्टोर करता है। तो वो लाइब्रेरी के अंदर में कहां पे आपका एक कमांड है
अगर ये आपको देखना होगा तो उसके लिए व्हिच कमांड यूज होगा, बट ये वो जगह आपको दिखाएगा जहां से ये कमांड एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होगा मतलब एक कमांड का दो पाथ होता है, एक को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन पाथ, एक को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम। মানে খুব একটা ইজি एग्जांपल আমি তোমাদেরকে দিচ্ছি, তাহলে বুঝতে সুবিধা হবে। ধরো लेट्स से मैं हावड़ा में रहता हूँ, वहां मेरा घर है, तो मैं ऑफिस जब मेरा खत्म हो जाता है तो आई गो टू माई होम, आई टेक रेस्ट। वहां पे मेरा ऑफिस है क्या? ठीक हो, ওখানে কি আমার অফিস আছে? না। वहां पे क्या मेरा ऑफिस है? नहीं, वो मेरा रहने का जगह है। जब मुझे काम करना होगा, व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू कम हियर एंड वर्क। जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा, आई विल गो बैक टू माई होम। ये सुनो, कमांड भी ऐसा ही है, उसका रहने का घर अलग और काम करने का जगह अलग। ठीक है, तो जो काम करने का जगह है उसको हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन पार्ट, और जो रहने का जगह है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम पार्ट। जहां पे आपका कमांड रेस्ट करता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? वी कॉल इट प्रोग्राम पार्ट। और जहां पे आपका कमांड एग्जीक्यूट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूशन पार्ट। क्लियर? जस्ट लाइक एक और एग्जांपल ले लो। सोचो सचिन तेंदुलकर शिवाजी पार्क के बगल में रहते हैं, ये ओवर द इयर्स हम लोग सुनते हुए आए हैं। अच्छा चलो, আমরা কলকাতা থাকি, আমাদের বাংলার বাঘ গাঙ্গুলি উনি বেহালায় থাকেন, ঠিক তো নাকি? তো আচ্ছা আমাকে একটা কথা বললো, ইডেন গার্ডেনটা কি ওনার বাড়ির উঠোনে? নিশ্চয়ই না। ওনার যে বাড়িটা, उनका जो घर है वो प्रोग्राम पाथ होगा। तो बेहाला वाला रेसिडेंस उनका है प्रोग्राम पाथ, जहाँ पे वो नॉर्मली रहते हैं जब कुछ नहीं कर रहे होते हैं। पर सोचो उनको इंडिया की तरफ से बैटिंग करना है तो उनको पार्टिकुलर स्टेडियम पे पहुंचना पड़ेगा। तो आपका कमांड का भी ऐसा ही है, ये रहता है सिस्टम के अंदर एक जगह पे, बट जब वो काम करेगा अपना घर से निकल के जहां से काम करना होगा वहां पे हाजिर हो जाता है। तो व्हिच कमांड आपको क्या बताएगा? व्हिच कमांड आपको बताएगा आपका एग्जीक्यूशन पाथ क्या है। ठीक, एक सर একদম ম্যাডাম, ঠিক তাই, আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা আগে জিনিসটা লিখে নিই, পুরোটা লিখে নিয়ে তারপর আমরা আগে যাব। তুমি তো সুন্দর করে লিখে রেখেছিলাম পরপর। হ্যাঁ হ্যাঁ, হেল্প ইন লিনাক্স। व्हिच कमांड के बगल में हम लोग जाएंगे ना, व्हिच। तो टू, अच्छा टू अच्छे सी execution of a command. To see the execution path of a command is known as using which command you can run this. Execution path मतलब execution path means from which location the command is running. ठीक तो? স্যার বলছি হুইচ লিখেছে, ইউজার অ্যাড লিখেছে, ওটা লিখতে হবে? ওটাই তো কমান্ড। আমি জানতে চাই এই ইউজার অ্যাড কমান্ডটা কোত্থেকে চলছে। ইউজার একটা কমান্ড, বাট আমি জানতে চাই ইউজার অ্যাড কমান্ডটা কোথা থেকে চলে। ইউজার অ্যাড কমান্ডটা এই জায়গাটায় আসে, তারপর হেলমেট পরে নেমে পড়ে। ঠিক আছে, দ্যাটস ইট। ওকে স্যার। লাল করে দিলাম, এটা হলো তোমাদের কমান্ড। স্যার প্রোগ্রাম তো লিখে দিন। লিখবো তো, আছে ওই কাছে লিখবো। You don't worry about the topic. You just learn. I'll manage. স্যার পিচের সাথে তার মানে কমপ্লিমেন্টারি ইউজার অ্যাড,
হুইচ মানে তুমি ইউজার এড কমান্ডটা যদি জানতে চাইছো আচ্ছা তুমি এর জায়গাতে অন্য কমান্ডও ও, লিখতে আচ্ছা পারো। আচ্ছা ওটাই বলছি। হ্যাঁ ইউ ক্যান রান সেপারেট কমান্ড। সোচো কি fdisk fdisk ইজ এ কমান্ড, দেখো এটা অন্য জায়গা থেকে চলছে। fdisk হচ্ছে আমাদের ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট ইউটিলিটি। আরো অনেক কমান্ড আছে, যে কোনো কমান্ড তুমি জানতে চাইছো তুমি হুইচ কে জিজ্ঞেস করো না হুইচ থেকে চলছে, এটাও তো করা যাবে হুইচ। হ্যাঁ বলছি আমি এসব আমার ব্যাপারে তো বলবো না। আচ্ছা হুইচ কে জিজ্ঞেস করো হু, देखो तो डज नॉट डिपेंड ऑन किसके बारे में आप पूछ रहे हो, which आपको अपने बगैर सबके बारे में बताए, अपने बारे में नहीं बताएगा। স্যার এখানে বিআইএন আর এসবিআই টা কি? বলবো ডিরেক্টরি স্ট্রাকচার বলে একটা চ্যাপ্টার আছে গোটা, ওখানে প্রত্যেকটা ডিরেক্টরির কাজ আমি বলি। আগে একটু কটা কমান্ড একটু হাতে বসিয়ে নাও, চালিয়ে নাও, ওইটা দেখালো না এখন দুদিন পুরো খারাপ বোরিং হবে। একটু কমান্ড হাত বসে যাক, একটু সিস্টেম আপডেট করো, মজা আসুক। আইটির লোক তো এখন ফাইল ফোল্ডার বানাতে শেখালে বিরক্ত লাগে, বলবে কি ফাইল ফোল্ডার বানাতে শেখালে, তাই না? দাঁড়াও আগে তোমার রিলেটেড কিছু কাজ করি, ইন্টারনেট কানেক্টিভিটি চেক করবে, সিস্টেম আপডেট করবে, এগুলো মজা, ইউজার লগইন চেক করবে, তাহলে ইন্টারেস্টটা একটু গ্রো করাই, তবে না তুমি অন্য জিনিসগুলো শেখাবো। তুমি জানো যে রিলেটেড যদি তুমি কারিকুলাম ফলো করো, SA1 লাস্ট চ্যাপ্টার অফ SA1 ইজ ইনস্টলেশন। এখানে 19টা চ্যাপ্টার আছে, ইনস্টলেশন লাস্ট। ওরা কি বলছে আমাদের ল্যাব রেডি আছে ওটা ইউজ করো পয়সা দাও। কেন ভাই, যখন আমরা শেখাই ওই জন্য ফার্স্ট इंस्टॉलेशनটা শেখাই। রেলেট आपको क्या बोल रहे हैं, आप मेरा लैब है रेडी, पैसा दो हम दे रहे हैं एक्सेस, एकदम ग्राफिकल लॉगिन करके एकदम उसका कंसोल खोल के काम कर सकते हैं। आईएसओ डाउनलोड करके इंस्टॉल ना कर लेंगे, वो ওখানে বসে ওয়ার্ক করছে। আমি সব দেখতে পাবো, আমার ভগবান দিকে দুটো আর ডাক্তার দিকে দুটো, চারটে চোখ। শুনলাম তো ওটা হোয়াইট কালার, এটা কি? হোয়াইট খাতা বলছি কথা কথা। चलो आगे जाए, आगे जाबो। अच्छा यही कमांड था, इसके बाद में क्या कमांड है? अच्छा तुम लोग को समझ में आ रहा है भाई, वो कोनो असुविधा है इसमें नहीं? उसमें आकाश किसान आदित्य ठीक है ना? ओए तुम पीछे क्या कर रहे हो, उधर से पेंगुइन से मुलाकात हो जाएगा, सामने आके अरे सामने आके बैठ, आजा बैठ। तुम বুঝতে পারছো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না তো? অসুবিধা হলে বলবে তো, বড় দাদা দিদিদের মাঝখানে লজ্জা পেও না কিন্তু বাবা, শিখতে তোমাকেই হবে, খেয়াল রেখে। অসুবিধা হলে একদম মনে করবে তুমি আছো আর স্যার আছে, পিয়ার টু পিয়ার কানেকশন, ঠিক? নো ক্লায়েন্ট সার্ভার নাথিং। আগে যাই। আচ্ছা নেক্সট কমান্ড ইজ হোয়াট ইজ। হোয়াট ইজ এর বাংলা কি হয় बोलो, व्हाट इज को अपना लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे? এটা কি? व्हाट इज का काम भी वही है, ये क्या है मतलब इसका, इससे करेंगे क्या, राइट? বলছি দাঁড়াও নিশ্চিন্ত রাখো, আমি বলছি না তুমি শেখাতে মন দাও, আমি শেখাতে মন দাও। এই দেখো there is a command called what is। what is আমি লিখলাম ধরো what is user add, কি বলছে লেখাটা পড়ো আগে, পড়ো। কমেন্টারি কি হয়? Exactly, So what is user ID? হোয়াট ইজ বুঝলে কোনো অসুবিধা না। समझे क्या है इस कमांड का काम? बोलो কে বলে, কে বলবে, তুমি বলো কি বুঝলে কমান্ডের কাজ? ক্রিয়েটেড নতুন ইউজার, এ কেমন হিন্দি বলছি, ক্রিয়েটেড নতুন ইউজার, ক্রিয়েটেড ইউজার বলো, ঠিক আছে। তাহলে এই কমান্ডের কাজ কি? আমি কি জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি বললে? আমি বললাম व्हाट इज कमांड का काजটা কি বুঝলে? आपने क्या समझा व्हाट इज कमांड का काम? अरे क्या क्या समझे? अरे बोल ना, गलती होगा हम काट लेंगे थोड़ी। वो तो है, वो तो बोल, बोल। मतलब इसमें नया यूजर बनाओ या फिर जो पुराना है उसको अपडेट कर। नहीं नहीं नहीं, तुम यूजर एड कमांड के ऊपर ध्यान मत दो, तुम व्हाट इज कमांड के ऊपर ध्यान दो। वही ना बताएगा क्या है ये। हाँ एग्जैक्टली। ये आप सोचो कोई एक कमांड को देखे हो और आपको नहीं पता ये कमांड से क्या होता है, तो आप व्हाट इज करोगे ना, व्हाट इज आपको बताएगा इससे क्या होता है।
ठीक है, सपोज मेरे पास एक नया गैजेट आया, आप मुझे पूछते हो ना सर ये क्या है, क्या? या मैम के पास आप कुछ कमांड है, रूपक सर के पास कुछ कमांड है, या कुछ चीजें मैं नया लेके आया, सपोज मैं जेटकिंग में ये चीज मैं पहला लेके आया, এইটা সবাই আমায় বলছে এটা কি, অ্যাকচুয়ালি তারা কি বলছে कि व्हाट इज এটা, ठीक तो अगर लिनक्स को आप पूछोगे तो क्या पूछोगे, व्हाट इज। अभी सोचो तुम्हारा कोई सीनियर इंजीनियर है जो ने एक टफ सा कमांड लग रहा है चला दिया, और आप उसको पूछ नहीं पा रहे, और आपको ज्यादा पढ़ लेने में दिक्कत भी हो रहा है, आपको एक वन लाइनर आंसर चाहिए ये क्या करता है, तो क्या लिखोगे आप, व्हाट इज बोल के जो कमांड के बारे में आप जानना चाहते हो उसका लिख देना है। व्हाट इज आपको क्या बताएगा, एक वन लाइनर ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट एनी कमांड आपको ये बताएगा। दूसरा कुछ ट्राई करते हैं, व्हाट इज एफ डिस्क, देखो ना, मैनिपुलेट डिस्क पार्टीशन, मतलब डिस्क मैनेजमेंट करने के लिए एफ डिस्क कमांड का यूज होगा। अच्छा चलो और देखिए, व्हाट इज हु, सो हु इज लॉग, सी फंक्शन पता चल रहा है हर एक कमांड का, तो आप ये वाला लिख लो, Wait, sir, what is व्हाट इज व्हिच लिख दे, ঠিক আছে তো, বলবে এটা যে যা দেখতে চাইবে আমাকে বলবে, আমি চেষ্টা করবো দেখো। Sir, what is IF config? आइए कॉन्फ़िग का लिखा थे अभी, देख ले पहले ये लिख दे इधर। अच्छा व्हाट इज का मतलब सोर्स वन लाइन ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए कमांड, ठीक, कमांड कैसे रन करना है ऐसे, যেটা সম্বন্ধে জানো না সেটা সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে নেবে, যদি আমাকে জিজ্ঞেस करते लज्जा लग जाए व्हाट इज के जिज्ञेस कर देंगे, अगर हमको पूछने में अच्छा नहीं लग रहा व्हाट इज को पूछ लेना, व्हाट इज आपको हेल्प कर देगा। अच्छा अभी के एक जन डिमांड दिलो इफ कॉन्फिग का, एक मिनट दिखा दे फिर चलते हैं। क्या बोल रहा है, नथिंग एप्रोप्रिएट, बिकॉज इसलिए बोल रहा है इफ कॉन्फिग कमांड अभी इंस्टॉल्ड नहीं, ठीक है, इफ कॉन्फिग कमांड इंस्टॉल्ड नहीं है, মানে লাইব্রেরিতে পাচ্ছেন না? লাইব্রেরিতে কমান্ডটা নেই, তাহলে ইনস্টল করে নি, কিভাবে করবে, ডিএনএফ ইনস্টল নেট হাইফেন টুলস বলে একটা কমান্ড আছে, অনুপম বলছে এরকম তোমার ক্ষমতা নেই, এরকম তো করতেই দেবো না, ঠিক আছে এসইউ সুডো সু, अच्छा এখানে तुम কত খাটা দরকার নেই, एसयू माइनस पासवर्ड रेड हैट में आ गए, अभी रूट में आ गए ना, अभी लिखना पड़ेगा डीएनएफ इंस्टॉल नेट माइनस टूल्स। কি করে জানলাম এই কমান্ডটা, ইন্টারনেটকে জিজ্ঞেস করবে, কোনো অসুবিধা নেই, আই এম নট গেটিং দিস কমান্ড, কি বলছে এইটাই কমান্ডটা নেই। अच्छा आईएफ कॉन्फिग कमांड को इंस्टॉल आईएफ कॉन्फिग বলছে আমি দেবো না এইসব, হবে না, বলছে এই কমান্ডটা আমি খুঁজলাম কিন্তু নেই, ঠিক আছে। अच्छा आप देखो व्हाट इज, अच्छा यूनेम করবে, यूनेम করো, ঠিক আছে তো। স্যার ওটা কি লিনাক্সের কনসোলটা চালাতাম হোয়াট ইজ আইপি, ওখানেও কি আসতো না, মানে এটা তো আপনি সুপারবুটটি যেখানেই চালাও যদি কমান্ডটা ইনস্টল করা না থাকে চলবে, গ্রাফিক্যালি করলে হবে, গ্রাফিক্যালি যে প্যাকেজটা থাকে ওর মধ্যে আইএফ কনফিগ কমান্ডটা থাকে, এই সিএলআইটাই থাকে, এটা একদম মিনিমাম কটা প্যাকেজ থাকে। হ্যালো বোঝা গেছে, এটা হোয়াট ইজটা বোঝা গেছে, লিখে নেবে, লিখে নাও। পাশে যে 8 টা লেখা এটা মানে ব্র্যাকেট এই টিক্স তারপরে ব্র্যাকেট 8 তারপরে ক্লোজ, ওটা ধরো এফ ডিস্কের কোনো আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার হবে, sir, user addও ছিল। হ্যাঁ থাকে তো সবাই থাকে, কিছু আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার দিচ্ছে ওরা, বা ভার্সন হতে পারে। पूछा मैं क्या, आओ
मुझे कहाँ चले जाएंगे कोई नया फोन पुराना फोन है वैसे अगर छोटा है ये तुम्हारा व्हाट्सएप का कोर्स ले जाना लैपटॉप में आएगा বুঝে স্যার বলছি আমরা নর্মাল যখন নর্মাল ইউজার থেকে যখন রুট ইউজারে যাই তখন আমরা আবার লগ করে আবার লগ ইন করি বাট স্যার সেটা সিএলআই থেকে কি আবার দিলাম লোগো সুডো সুডো দিয়ে করলে সুডো না 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 সুডো পুডো কিছু ব্যবহার করবে না এখন এই তো সব আবার লগ ইন যখন লগ ইন আমি যাই সুডো আছে সুডো একটা চ্যাপ্টার আছে সুডো আপনি দাঁড়িয়ে দিলেই হয় অলরেডি চ্যাট আরে শিখতে হবে তো না শিখলে হবে তুমি না ইঞ্জিনিয়ার যখনই মন করবে না শিখতে তখনই নিজেকে একবার বলবে তুমি না ইঞ্জিনিয়ার তুমি শিখতে না মানেটা কি তুমি আর করতে কি এসছো আর কিছু করতে এসছো কি শিখতেই তো এসছো শেখো না কি কষ্ট কেউ বসে শেখাচ্ছে কোনো জিনিস শেখো ভালো করে শেখো আগে যাই আচ্ছা এবার কি কমান্ড দেখবো আমরা वेरी चलो चले जाइए कमांड पे चलाते हैं कमांड पहले এটা কোথায় देखो इसमें दो कमांड है दो आउटपुट आ रहा है एक ये इसको तो आप लोग जानते हो ये जहां से एग्जीक्यूशन पाथ है और ये कौन है दिस इज द प्रोग्राम पाथ वेयर द कमांड स्टेज एक्चुअली लाइब्रेरी का जो रैक है वो रैक में इधर पे रहता है कैसे पता चला देखो ये लास्ट में एक डॉट जीजेड है जीजेड माने कॉम्प्रेस्ड जैसे विंडोज में WinRAR होता है ना डॉट रैर या डॉट जिप यहाँ पे भी रहता है डॉट जीजेड ऐसा 3 यूटिलिटी इनबिल्ड रहता है ओके जीजी बीजी एक्सजेड এই তিনটে দিয়ে কম্প্রেস করা যায় উইন্ডোজের মধ্যে ইনবিল্ড কোনো কম্প্রেস করার টুলস নেই আমাকে ফাইল কম্প্রেস করতে পারি সেটাও ইএফএস দিয়ে এছাড়া মানে আমরা যে नॉर्मली जो WinRAR से जो हम लोग किसी को कंप्रेस करते हैं ताकि साइज थोड़ा कम हो जाए वैसा यूटिलिटी थर्ड पार्टी से ही हम लोग को विंडोज में करना पड़ेगा बट अगर हम लोग लिनक्स प्लेटफॉर्म पे आते हैं एक नहीं 3 रूल फीचर है ठीक है तो ये जो लास्ट में देखो डॉट जीजेड है इट आइडेंटिफाइज दैट इट इज कंप्रेस्ड एबारे मैं बोलो आप रिलैक्सेशन पे कहां पे रहते हो घर में या वर्क प्लेस घर के बाहर तुम रिलैक्स रहते हो घर में नहीं घर में सावधान परिसर में रहता है एक तरीके से वही ऐसा नहीं हो मैंने नॉर्मली नहीं होता वो तुम्हारा स्ट्रिक्टनेस अलग बात है मतलब तुम रेस्ट कहाँ पे लेते हो घर में तो आपका कमांड भी अपना लाइब्रेरी का रैक में ही रेस्ट लेता है रेस्ट लेते हुए ना सो जाता है थोड़ा सा तो कंप्रेस हो जाता है कैसे हो जाता है डॉट जीजेड तो डॉट जीजेड मतलब क्या होता है दिस इज द प्रोग्राम पाथ और ये क्या है दिस इज द एग्जीक्यूशन पाथ तो वेयर इज कमांड इज गोइंग टू शो यू बोथ प्रोग्राम पाथ सॉरी एग्जीक्यूशन पाथ एंड द प्रोग्राम डॉट जीजेड माने फाइलটা কম্প্রেসড ঠিক আছে কম্প্রেসড যখন আমরা বিচ কমান্ডটা ইউজ করছি ওখানে ইউজার মানে এক্সিকিউশন পাথ আর প্রোগ্রাম পাথটা কি করে জানি প্রোগ্রাম পাথ আর এক্সিকিউশন পাথটার যে ডিফারেন্সটা কি করে বুঝতে পারবো এই এখান থেকে দেখো এইটুকু হচ্ছে আমি লিখে দিচ্ছি দাঁড়াও না আমি যাই নোটপ্যাড ওই জন্য তো গুগল ডক্সে লিখছি অনেক সুবিধা আছে it shows both execution path and program path. Program path means by default where the
command is stored. एक मिनट এইটা হচ্ছে আমাদের কমান্ডটা, ঠিক আছে? এই পার্টটা ঠিক আছে, রং করে দিলাম, বুঝা যাচ্ছে তো? স্যার বলছি জি জেড ওটা কি বললেন? It is compressed. ঠিক আছে, স্যার আর দুটো কি কি আছে বললেন? বলবো যখন চ্যাপ্টার আসবে বলবো। জিজি, গাঞ্জি, বিজি, বাঞ্জি, বহুত কিছু আছে। এই মজা আসবে, দেখো নাম মজাদার আছে এখানে একটা। अच्छा, हेल्प कंप्लीट कर देंगे आज, हेल्प करके छोड़ देंगे। কিছু তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না? লোকে খালি বলে কিছু লাগতো না, দু চার পাঁচটা কমান্ড চালিয়ে একটু স্ক্রিনটা পরিষ্কার করে দেবে, মজা এসে গেল। আগের কথা উইন্ডোজ সার্ভার শিখে ফেললে একটা ক্লায়েন্ট হয়ে শিখতে পারবে না, কি আর এমন ব্যাপার। चलो आगे जाए, नहीं सर, नहीं जाए? अच्छा ठीक है, रुकते हैं। 2 सेकंड सर। चल चल ठीक है, कोई बात नहीं। मैन माने मैनुअल, हाँ सर, चलिए। मुस्लिम मुस्लिम তোমাকে কি বললো? এই যে বলছে ও দুঃখে আছে। মনে হচ্ছে লোকজন তো অনেক ছিল, তারা বলবে কাছে এক কেস এরকম। আগে যাই, চলো। ম্যান মানে কি? হ্যাঁ, ম্যান মানে তো মানুষ, ঠিক, বাট এই মানুষ সে মানুষ নয়, এই মানুষ ম্যানুয়াল পেজ। কেমন? ম্যানুয়াল পেজ মানে এন্টায়ার इंफॉर्मेशन of any कमांड। कोई भी कमांड के बारे में आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, एकदम बाबा मार नाम থেকে শুরু করে নারী নক্ষত্র সমস্ত কিছু বলবে। कौन सा कमांड होगा सब देखते चला के चल देख। मैन स्पेस ধরো বললাম ইউজার অ্যাড, ঠিক তো? এই শুরু হলো। प्रचुर फाइल है, और इसको क्लोज करने के लिए क्या लिखेंगे? क्यू। क्या लिखेंगे? क्यू। কোথায় গেল যে সামিউল বাসি? এই তো বস। এই আমি কগনিটিভ সলিউশন তো সিভিটা পাঠাচ্ছি।
ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারের জন্য, ঠিক আছে? আজকে পাঠাবো, হয়তো সোমবার যেতে হতে পারে, ওরা জানিয়ে দেবে, মানে আমি মেল করে দেবো। ঠিক আছে। কগনিজেন্ট না কগনিজিট। সৌরভের বাড়ি কোথায়? উত্তরে দিক চলে যাচ্ছে। স্যার তো বোধক তোমার সিভিটাও পাঠাচ্ছি, স্যার পাঠাতে বলেছেন। তুমি সিভিটা হোয়াটসঅ্যাপ করো আমাকে প্লেসমেন্টের নাম্বারে, ক্লাস হয়ে গেলে আসো। নাও লেখো। স্যার আগে যাই, হ্যাঁ যাবো। আচ্ছা যাবো না। ম্যান পেজ সম্বন্ধে আরেক লাইন বলেছি তো, তখন তুমি লেখো। अच्छा ग्लोबल লেখো লেখো লেখো, कान तो पड़ जाएगा। अच्छा कभी अगर ग्लोबल सर्टिफिकेशन एग्जाम देते हो तो मैन कमांड विल बी हेवी हेल्पफुल, ठीक है? वो टेंशन में ना एक दो कमांड आदमी भूल जाता है। अच्छा बेसिक कमांड अगर याद है ना, बेसिक चीजें अगर जानते हो तो मैन कमांड ओपन करके तुम कमांड का थोड़ा ग्लिम्स इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ধরো তোমার একটা কমান্ডে একটা এক্সাক্ট অপশন মনে পড়ছে, মাইনাস পি ছিল না মাইনাস কিউ ছিল, কি ছিল এক্সাক্ট মনে পড়ছে না, তো ম্যান পেজের মধ্যে সব লেখা আছে, ম্যাन पेज तुम ओपन करते ही पारो, কোনো অসুবিধা নেই। और सर्टिफिकेशन अगर आप कोई ऑप्शन भूल जाते हो कि माइनस पी देना था कि क्यू देना था क्या था, अरे भूल जा रहे हैं टेंशन में, टेंशन नहीं है, सोचो कि एलवीएम एलवी क्रिएट ये कमांड होता है, लेकिन उसके बाद में एस था कि पी था आई डोंट नो, तो हम लोग लिखेंगे मैन एलवी क्रिएट, ऑप्शन जा আছে देखेंगे, देखा নিলে মনে পড়ে যাবে, ऑप्शन जो है देख लेना, देख लेने से याद आ जाएगा। इट इज वैलिड, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा, मैन पेज आप ओपन कर ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है आगे जाए। ऐसा कोई विंडोज में नहीं है क्या विंडोज में F1 प्रेस करना पड़ता है ना, विंडोज में F1 प्रेस करने से किसी चीज का इस्तेमाल दिखाता है, बट इंटरनेट होना चाहिए, सिस्टम के अंदर में नहीं है, इसमें रहता है। अच्छा इन्फो कमांड, এই দেখো ইনফো কমান্ড, ইনফো ধরো বললাম এফ ডিস্ক, বলছে ইনফো কমান্ডটা ও জানে না, এই কমান্ডটা এর মধ্যে ইনস্টল করা নেই, খালি মানে করা যায় কিন্তু মানে এই इंस्टॉलेशन নেই, কি বলে मिनिमल इंस्टॉलेशन में इन्फो कमांड लाइब्रेरी अवेलेबल नहीं है, इंस्टॉल कर लोगे तो चले, सेम आउटपुट लाइक मैन, मैन जैसा सेम आउटपुट है, सेम एज मैन आउटपुट, सेम एज मैन आउटपुट, बट स्क्रोलिंग is enabled, इसके स्क्रोलिंग है, मतलब आप ऊपर नीचे माउस क्लिक करके स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है? इसके अंदर स्क्रोलिंग है, बाकी कमांड सेम है। मैनेज जाएगा,
বুঝে গেল? অসুবিধে না স্যার? আর লাস্ট কমান্ড রইলো হেল্প। হেল্প মানে মাইনাস মাইনাস হেল্প ইউজ করা যেতে পারে। এই কমান্ডটা লাগে না কাজে খুব একটা, তবু একবার দেখে নাও। ये कमांड थोड़ा पीछे लिखना होता है, यूजर ऐड माइनस माइनस हेल्प। तो खाली आपको ये इसके साथ में यूज हो सकता है, ऑप्शंस दिखाएगा। टू सी ऑप्शंस, हेल्प कमांड यूज होता है टू सी ऑप्शंस of a command that can impact the आउटपुट को इम्पैक्ट करेगा। ओके, हेल्प कमांड रन करने का तरीका क्या है? तरीका तो वही है, স্যার বলছেন যদি সার্ভার উইথ জিউআইটা ইনস্টল করতাম তাহলে কি fdx হ্যাঁ। দেখাতো? ইনফোটা দেখাতো, এফডিএস কমান্ড তো আছেই, বাট ইনফোটা দেখাতো। ঠিক আছে, এই হলো আমাদের হেল্প। माइनस माइनस हेल्प करके नहीं चलता, हेल्प नहीं लिख सकते। ये कमांड का स्ट्रक्चर ऐसा, माइनस माइनस। इसमें आपको कमांड के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं बताए, ये खाली बताएगा इसके साथ में क्या क्या ऑप्शंस यूज कर सकते हैं, माइनस क्या ऐसे। एक माइनस देके हेल्प देंगे तो काम नहीं आएगा, वो नहीं देगा। আগে যাবো, স্যার ওখানে যদি ইউ নেম করে তারপরে হেল্প মারতাম তারপরে ওটা সব দেখে নাও একবার। দেখো যেগুলো শিখেছিলাম আমরা এর চেয়ে বেশি করেছি অপশন। ইউনেম মাইনাস মাইনাস হেল্প, ঠিক আছে তো? অসুবিধা? চলো তাহলে আমাদের এই পার্টটা হয়ে গেল। তোমরা তাহলে এই পার্টটা প্র্যাকটিস করো, করে सिस्टम रजिस्टर করে নাও। হয়ে গেলে अच्छा करना क्या है? अच्छा आज तो शाम को पढ़ाई लिखाई करने के लिए बोलूंगा, अभी तो कोई नहीं सुनेगा। आज तो मैच है, आज मैच देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आज इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है, देख लो अच्छे से। अगर इंडिया जीत जाए तो कल खुशी खुशी प्रैक्टिकल कर लेना, अगर इंडिया हार जाए तो मेरा जिंदगी इसके थ्रू नहीं चलेगा, ऐसा सोचे। लेकिन करना जरूर, कल हर टाइम है आपके पास। कल जब आप घर में रहोगे, किसका किसका कंप्यूटर नहीं है घर में? तुम्हारा नहीं है तो ले लो आप। चलाने का तो अगर जिसका सिस्टम नहीं है वो आज बीसीए बैचेस नहीं रहता, आज जेटकिंग पे बैठ के प्रैक्टिस करके फोटो खींच के दे के जाना। ग्रुप में डेली का एक्टिविटी जो भी प्रैक्टिकल आप करेंगे उसका आउटपुट फोटो खींचो और ग्रुप में डालो। अपना फोन से डिलीट कर देना, मेरा फोन में जमा हो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 128 GB रॉम वाला फोन है, सब डाउनलोड हो गया, कोनो चाप नहीं। बट प्रैक्टिकल आईफोन में कुछ नहीं करता, खाली कॉल आता है कॉल जाता है बस। नहीं बाकी सब कुछ होता है, ऑफिशियल कोई भी काम उससे नहीं करता, बस उसमें मेरा ऑफिस का कुछ नहीं है। ऑफिशियल व्हाट्सएप पे होते नहीं, ওটা একদম পার্সোনাল। तो एक बार आपको करना क्या ये हो गया, आप जिसका जिसका सिस्टम नहीं है वो आज सेंटर में करके जाना। ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा 40 मिनट लगेगा करने में, करो फोटो खींचो सेंड करो चले जाओ। और जिसका घर में सिस्टम है, अगर आज टाइम मिले एक्सीलेंट, नहीं मिले तो कल टाइम है कर ले, ठीक है? करके भेजना हमें লিনাক্স। হ্যাঁ যতটুকু পর্যন্ত হয়েছে, যে কটা কমান্ড চালিয়েছি, যদি কোনো ডাউট আছে, अगर किसी को कुछ डाउट है तो पोस्ट इन द ग्रुप, हम आंसर करेंगे। গ্রুপটা এটা व्हाट्सएप হ্যাঁ টেলিগ্রামে লিখবে, কোনো অসুবিধা নেই। ঠিক আছে তুমি এই ভিডিওটা আপলোড করে দাও। আচ্ছা আর হলো এটা হয়ে গেল কথা। আচ্ছা মানডে हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर शुरू करेंगे। স্যার
মানডে তো ও ওই টিউসডে মানডে হ্যাঁ এইটা টিউসডে হ্যাঁ। হ্যাঁ বলো বলো। তো বলছি স্যার আমি তো মানে প্রথম দিনে একটা ক্লাস মিস করেছিলাম, তো সেটার জন্য আমি ভিডিওটা এখনো পুরো দেখিনি। যাই হোক আমাকে একটু বেসিক এই দুটো জিনিস একটু বলে দেবেন, মানে এই বেসিক জিনিসটা একেবারে ইন্টারফেস। দিয়ে দিয়েছি, প্রথম দিনের রেকর্ডিং দিয়েছি, টেলিগ্রামে আছে, ওই আচ্ছা অনুপমকে যোগাযোগ করো, অনুপম দিয়ে দেবে। আরেকবার দিয়ে দাও, কি হয়েছে তোমার, কি কষ্ট বলো বলো স্যার কিছু মধ্যে আর হচ্ছে না। দিয়ে দাও স্যার এটা আউট যখন আমি ইনস্টল করতে থাকি ওরাগেল পিএম বক্সে স্যার এরকম আউটপুট ওরাকেল বিএম বক্সের একটা ভার্সন এটা ডিস্টার্ব দেয়, আমি তো কি করি কিছু করার নেই তোমার ভুল না, এটা ওই ব্যাচিং এর জন্য হয়। তোমার যদি ওরাকেলে না হয় তুমি বিএম বক্স তুমি চাপো, বাইরে গেলে দরকার আছে অ্যামাজন থেকে ইনস্ট্যান্স দিন না, দরকারই তো নেই ইনস্টল করা। इंस्टॉलेशनটা যদি প্র্যাকটিস হয়ে গিয়ে থাকে 360 के बोलची अगर इंस्टॉलेशन प्रैक्टिस हो गया है तो इंस्टॉल करके भी टाइम वेस्ट मत करना। बेस्ट इज दैट लॉगिन टू योर AWS अकाउंट, एक रेड इंस्टेंस लॉन्च कर लेना, उसको SSH से एक्सेस कर लेना, दैट्स इट, बेस्ट आइडिया है। और जिसको AWS अभी नहीं पता है वो लोग एक बार इंस्टॉल करके रख देना। আমার কাছে লিনাক্সে 9 ভার্সনটা আছে, হ্যাঁ এটা 9 থেকে আমি 9 করে আপডেট করব और ये ने हाँ, भाई तो सर जी हाँ जी हम लोग का अटेंडेंस बना दे बिल्कुल, क्यों नहीं। इसी के लिए अच्छा आली राजा आ गया, কোনটা आदित्य आ गया, हाँ सर किसान, सौभिक, आकाश, प्रेजेंट सर ऋषि, प्लेस ऑन तो क्या लिख दे प्लेस्ड, प्लेस्ड बोल के कोई पैरामीटर नहीं है, हम तो एब्सेंट लिखेंगे फिर आगे देखेंगे। शुभम चैटर्जी लाइन होगा कहाँ है, हाँ आई था। हाँ ठीक है, रोहन, यस सर और कोई बचा है, हम लोग का 13 ही जन है। अच्छा 360 का केव बाकी है, राहुल एसचो, सर मेरा राहुल आईफोन यस स्যার। है ना, बोलो भाई। प्रारंभिक एसचे, प्रारंभिक दो दिन में क्या किया सौमदीप, सौमदीप का यस सर আছে। अच्छा दीपशिका एले, Sir, I am present, sir. Mrinalini. अर्घो आछो, अर्घो नहीं, अच्छा संगम आ गया, और कोई है, ठीक है हाँ স্যার বলছি AWS লঞ্চ করেছি মালিক ওইটার মধ্যে হবে